So here we go with 12 to 21 unit जहाँ पे most expected questions देखने वाले. As I have promised previously, we have dealt with unit 1 to 11 and moreover in the following video after this we are going to continue with the maps जहाँ पे मैं आपको इंडिया और वर्ल्ड मैप के important locations दूंगा और how to draw it. I mean map pointing आपको कैसे, यानी कि अगर आपको mountains है तो आपको कैसे draw करना है, mountain के लिए क्या shape लेना है, rivers कैसे draw करना है. I'm going to share all those things in the next video and following it will be interpretation analysis जहाँ पे मैं आपको important topics दूंगा interpretation analysis के. Already I have shared some samples of interpretation analysis की एक video मैंने separate share की है. अगर आप तक नहीं reach की तो please reach out to me. So I'll share this through my WhatsApp number. You all have my WhatsApp number. I believe even the new joinees who are taking up the membership very recently, they can also reach out to me for these links and then followingly हम लोग objectives करेंगे. By evening I'm going to share you the maps. Now start with the 21st unit, formation of Telangana. 4 mark का question है, describe या फिर explain the gentleman's agreement जहाँ पे आपको 7 points है और ये points आपको exactly लिखना है. या generally social हम लोग own से लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं, ये एक terms and conditions of an agreement है, so you have to write on your own. Next 2 marks. List out the various forms of protest that were fought as a part of Telangana agitation. अलग अलग form of protest थे. Million march था, Vanta Varpu जहाँ पे you know together they were cooking and they had a feast kind of thing. All of them were eating together. There were different cultural dances and all. ठीक है, Sakala Janula Samma ये सब ऐसे चल रहे थे. Then next, why did people of Telangana demand for a separate state? Next 4 mark. What are the reasons for discontentment? Discontentment यानी कि dissatisfaction among the people of Telangana despite the gentleman's agreement, क्योंकि gentleman agreement की जो points थी वो properly implement नहीं हो पा रही थी. Next 4 mark question. What are the reasons for 1969 agitation? Okay, so 1969 agitation के reasons. Then next 2 mark question. Why is the literacy rate low in Telangana compared to Andhra? Even present times में literacy rate हमारा कम है. ठीक है, सो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं आपको निकाल के नैरो डाउन करके दे रहा हूँ, पहले आप ये पढ़ लीजिए. इफ टाइम परमिट्स विल गो विद सम मोर एक्स्ट्रा. नाउ यूनिट नंबर 20, सोशल मूवमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स. 2 mark क्वेश्चंस. व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर? ओके, डाउ कंपनी DOW डाउ कंपनी से जो डिजास्टर हुआ था तो विक्टिम्स की क्या डिमांड्स है. देन नेक्स्ट, व्हाट आर द लॉसेस इनकर्ड बाय द पीपल? तो लोगों में क्या क्या लॉस हुआ इसका भोपाल गैस डिजास्टर से. ओके, नेक्स्ट 2 marks. व्हाई डिड ब्लैक अमेरिकन्स बिगैन द सिविल राइट्स मूवमेंट? ये यूनिट का नाम है सोशल मूवमेंट्स ऑफ आवर टाइम. आई हैव अ 1 short वीडियो बट इट्स क्वाइट लॉन्ग जहाँ पे पूरे सोशल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑल आर कवर्ड. सो ओके, इफ यू रियली इंटरेस्टेड रीच आउट टू मी, आई विल शेयर द लिंक. नेक्स्ट 4 mark क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मीरापाइबी मूवमेंट. मणिपुर की जो मूवमेंट है मीरापाइबी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 4 marks में. ओके, अदरवाइज आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अबाउट एनी वन सोशल मूवमेंट. ओके, या एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस यूनिट. 19th, पोस्ट वॉर वर्ल्ड एंड इंडिया. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. यू कैन एक्सपेक्ट 1 आंसर. 6 marks के क्वेश्चन पहले मैं आपको 2 बता दूं जो इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस. नेक्स्ट, गिव सजेशंस टू बिल्ड cordial relations between India and its neighboring countries. So India and its neighboring countries, particularly China, Bangladesh. So इनसे हमारे cordial relations, अच्छे relations maintain करने के लिए आप क्या suggestions दे सकते हो? Okay. Then another very important question from the same unit, 4 marks का. Write a short note on West Asian conflict. This is very very important in the present times. So West Asian conflicts important. Next 4 marks. Explain the impact of Cold War on the world. West Asian conflict अभी जो situation चल रहा है, the war between Israel and Palestine जो conflict चल रही है वो वाला था. और Cold War is the war that is fought behind the doors, which is not a direct war. That could be a war of words और proxy wars भी इसको बोलते हैं. Direct war नहीं होती, which is between USA and Russia, जिसको proxy war कहा जाता है. अब जैसे आप देख सकते हो कि यूक्रेन के अलायंस में यूएस इज सपोर्टिंग यूक्रेन अगेंस्ट रशिया. नेक्स्ट, स्टेट द रीजन फॉर कंटिन्यूएशंस ऑफ वॉर्स बिटवीन सम कंट्रीज एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट सच वॉर्स. अभी भी इवन दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी, यूएनओ एस्टैब्लिश होने के बाद भी, स्टिल देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर कंटिन्यूइंग वॉर्स, इजंट इट? यूक्रेन रशिया वॉर इज बीन गोइंग ऑन सिंस ऑलमोस्ट 3 years. Okay, many such wars we have been witnessing. So suggest वो wars क्यों कंटिन्यू हो रहे हैं और मेजर्स टू कंट्रोल देम. ठीक है. देन अनदर 4 mark क्वेश्चन.
Why should India be a permanent member of Security Council? UNO की जो एक बॉडी है, ऑर्गन है, Security Council. Okay, India should be a permanent member. क्यों? आप ऐसे क्यों सोचते हो? क्योंकि because India can mediate between these countries who are waging war. So India इनको mediate करके, okay, इनको pacify कर पाती है. Then analyze the role of NAM during the Cold War. You know NAM stands for Non-Alignment Movement. This was established immediately after independence. So usually ये इसका मतलब क्या है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू इट वॉज बीन विटनेस दैट द वर्ल्ड वॉज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पावर ब्लॉक्स, वन हेडेड बाय यूएस, वन हेडेड बाय रशिया. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये रशिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है एंड अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. ठीक है, सो बहुत सारी कंट्रीज आइदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले वो रशिया के साइड हो गए, कैपिटलिस्ट रखने वाले अमेरिका के साइड हो गए. सो इंडिया ने सोचा, इंडिया एंड अदर कंट्रीज ने सोचा कि भाई अभी तो वर्ल्ड वॉर टू से हम लोग निकले कि अगर हम फिर यहाँ नहीं वहाँ कहीं ना कहीं अलाइन हो जाएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन ए थर्ड वर्ल्ड वॉर. सो कीपिंग दिस इन माइंड, इंडिया ऑर्गेनाइज्ड ओके नाम काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन हमने हेल्ड की, बनाया और उसके साथ साथ मीटिंग हेल्ड की जिसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम रखा गया. इसमें बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन हुई. इजिप्ट was there, Indonesia was there, Yugoslavia was there. So we were the one who initiated this. Okay, and this group is referred as a third world group कहा जाता है, इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है. अब हम 2 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, देन व्हाट इज मेंट बाय वीटो पावर. वीटो पावर क्या है, जो विच इज अ स्पेशल पावर ऑफ 5 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनओ, जनरली फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए एंड यूके. ग्रेट ब्रिटेन के पास एक स्पेशल पावर है, उसको वीटो पावर कहा जाता है. देन पंचशील, राइट अबाउट द पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील. पंच यानी 5, शील प्रिंसिपल्स. द 5 प्रिंसिपल्स, इट वाज एक्चुअली ए ट्रीटी. टेक्निकल टर्म है सोशल की. ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट साइन बिटवीन 2 कंट्रीज और 2 किंगडम्स. सो दिस वाज द पंचशील वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर द इंडो चाइना वॉर. यूनिट नंबर 18 पे आ जाओ. एमर्जिंग पॉलिटिकल ट्रेंड्स. 4 मार्क क्वेश्चन. Explain the changes that occurred in the Indian democracy from 1975 to 1985. में major changes क्या हुए in our political democracy, Indian democracy. Next one. What are the what is the need for coalition politics at present? Coalition politics का मतलब होता है कि जब कोई एक particular country, particular political party cannot secure more than 50% of the votes. Okay, so when one single party cannot score more than 50% of votes, then there arises the needs for the political parties to join together and form a government. Okay, गवर्नमेंट बनाने के लिए जब आपको मिल के गवर्नमेंट बनाना है तो उसको कोलेशन कहा जाता है. सो अभी एट प्रेजेंट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कोलेशन गवर्नमेंट है, राइट. देन गोइंग फॉरवर्ड, what are the key elements of economic liberalization? Okay, so हमारे पास economic liberalization यानी trade liberalization जो हुआ था वो यही पीरियड में हुआ था. Okay, ये जो particular lesson है, this talks about what all had happened between this period of 77 to 2000. So इसमें क्या क्या changes हुए थे during this period politically and all. So economic liberalization यानी कि business, यहाँ पे foreign investments को permission दिया गया था. ये सारी चीज़ें आपको लिखना है. Then write about India's achievement in technology between 1970s to 1980s. में टेक्नोलॉजी में हमको क्या अचीवमेंट हुआ, स्पेशली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी थी. देन विल गो विद द 17th यूनिट. इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज द फर्स्ट 30 years after independence, 47 to 77. Why was it difficult for the election commission to conduct the first general elections in India? It's a 2-mark question. Okay, ये क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा रहा है. What problems did the election commission faced in the first general elections? Right. Next, what did election commission do for the illiterates? Initially, so they were being asked to make a signature and all. So बाद में illiterates को पता नहीं और समझ में नहीं आता, बेचारों को पढ़ने नहीं आता. तो हमारे पास बहुत सारे illiterates थे उस जमाने में. अभी तो हमारा literacy rate काफ़ी on an average improve हो चुका है. For them, symbols were introduced. Next, what are the reforms, land reforms proposed by Jawaharlal Nehru? Next, what are the major steps taken for social and economic development of India after independence? 4 marks. Next, 2 marks. Write about the SR Act of 1956. Okay, SR, that is
State Reorganization Act of 1956. An act was passed by the Indian Parliament in 1956. It talks about states को reorganize करना है. British period पे presidencies states अलग अलग थे. हमारे पास में क्या किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लैंग्वेज पे आधार पर, जिसपे पास कॉमन एक लैंग्वेज बात की जाती है, जैसे मराठी बात की जाती है तो उनके लिए महाराष्ट्र, ओके, कन्नड़ा बात की जा रही तो उनके लिए कर्नाटका. इस तरह लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया था. ओके, तेलुगु के लिए तेलंगाना एंड आंध्र वाज मर्ज एट द टाइम. तो ये SRA एक्ट है. नेक्स्ट, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन ब्रिंगिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन द कंट्री, 4 marks. नेक्स्ट, 2 marks, राइट अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. नेक्स्ट, write the situations during the emergency period. Next, evaluate the causes and consequences of the rise of regional parties in India. This is one of the important questions. Okay, regional parties, क्योंकि पहले वन पार्टी डोमिनेशन था कांग्रेस का, उसके बाद में ऐसे स्लोली ग्रेजुअली रीजनल पार्टीज केम अप. तो इसका राइज कैसे हुआ और ओके इसके कॉजेज क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज. देन विल कम बैक टू यूनिट नंबर 15, द मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. How can you, 2 mark, how can you say that India has a federal polity? What do you mean by federal polity? Okay, the power is divided between the state and the center, isn't it? Do you agree? Okay, portfolios को divide कर दिया गया. For example, defense, foreign affairs are dealt by the central government. Okay, police, okay, local administration, local schools are dealt by the state government. तो इस तरह powers are being divided. दोनों independently अपना अपना power exercise करते हैं, central government और exercise state government दोनों. इसको फेडरल पॉलिटी कहा जाता. नेक्स्ट, 2 mark, राइट अबाउट द 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. 73rd अमेंडमेंट कौन सा है? अमेंडमेंट इज एनी न्यू एडिशंस और डिलीशंस दैट आर डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स. नेक्स्ट, 4 mark क्वेश्चन, लिस्ट आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट फैसिलिटेट सोशल चेंज. सोशल चेंज यानी हमारे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, इट वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम प्रियर टू इंडिपेंडेंस, तो उसको चेंज किया जा रहा है. तो इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, जैसा इक्वालिटी राइट्स है अपने पास में, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ओके, राइट टू इक्वालिटी है, डिग्निटी है, ये सारी चीज़ें, ओके, जस्टिस एंड ऑल. नाउ 4 mark क्वेश्चन, डज एवरी कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, वाई? ओके, मोनार्कियल गवर्नमेंट्स चलना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स होना चाहिए, क्यों? देन 2 mark क्वेश्चन, व्हाट इज, ओके, वील मूव ऑन विद द 16th यूनिट. एक्चुअली हम लोग 17 के बाद 15 चले गए थे, अभी 16 में आते हैं. इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. 2 mark क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए ये लोग कभी कभी एडल्ट सफरेज भी यूज करते हैं. एडल्ट सफरेज, व्हाट डज इट मीन इज एवरी इंडियन पर्टिकुलरली हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 has a right to vote. Every Indian citizen, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, irrespective of gender, male or female, rich or poor. Now, when are by elections held? ये पढ़ना है 2 marks में, और ऐसे ही एक 2 mark आंसर है. What are the differences between general elections and by elections? General elections are held once in 5 years, whether it's for the municipal elections हो, जो local body elections हो, या फिर state elections हो या parliament के elections हो, once in 5 year ये hold. In between कभी vacant seats create हो रहे for some reasons, deaths or any other criminal cases, okay, I mean like elected representative found to be held in any criminal activities or any sort of, okay, किसी में चीज़ ने स्कैम्स में पकड़े गए तो उनकी सीट्स वैकेंट हो जाती है, तो उसको फिल करने के लिए बाई इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं इन बिटवीन. ओके, नेक्स्ट 2 mark का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रीक्वेंट वायलेशंस ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बाई पॉलिटिकल पार्टीज. देखो, इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहिए, उसमें आप ब्राइब्स नहीं देना है, ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिसॉर्ट नहीं करना है. तो डिस्पाइट ऑल दीज कोड्स, अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पर्टिकुलर लीडर्स ये सब इसको वायलेट करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या करना चाहिए. देन नेक्स्ट 2 mark क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी भी कहा जाता है. नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट आई बिलीव इट्स कांग्रेस एंड बीजेपी, दीज आर द 2 national parties. स्टेट पार्टीज आर द रीजनल पार्टीज विद सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट दे सिक्योर एट द स्टेट लेवल. देन नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके साथ मैं 3 लॉन्ग आंसर शेयर करने वाला हूँ. यू कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ दीज, ओके, इफ लक फेवर्स. 4 mark, एक्सप्लेन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शंस, या नहीं तो की पॉइंट्स, स्पेसिफिक बोलते हैं एक्सप्लेन द की पॉइंट्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शंस. अनदर वन,
सजेस्ट मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो है लेकिन इसको सही इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए आप क्या सजेशंस दोगे? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सिंपली इलेक्शन कमीशन भी बोल सकते हैं। अब आपको 12, 13, 14 यूनिट है जिसमें ज़्यादा आंसर्स नहीं है आपको। 14th वन, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, दैट इज 1939 to 47. Write about the role of Sardar Vallabhbhai Patel in merging princely states into the Indian Union. Okay, I feel like this is the only important answer because ये लेसन से अदर इंपॉर्टेंट आंसर्स उतने ज़्यादा नहीं और है भी तो लास्ट ईयर पूछ चुका है। नेक्स्ट 13th यूनिट पे आइए। If I feel anything is left, okay, I'll once again deeply have a glance और deep analysis होगा मेरा एक और बार और मैं आपको शेयर करूँगा आगे। Next 13th unit, national liberation movements in the colonies. Okay, what were the reforms introduced by the Communist Party of China? Communist Party of China ने क्या reforms introduce किए? Okay, एक और 2 mark का question. What are the crises faced by the rural China? Rural China ने क्या problems face किए? Next 2 mark question. What led to the civil war in Nigeria? Nigeria में civil war क्यों हुई? 4 mark question. What were the reforms or the programs taken up by Sun Yat-sen or China? Sun Yat-sen बोल सकते हैं या China बोल सकते हैं after establishing the new democracy. Okay, then come back to the 12th unit, world between the world wars. So इसमें आपको very few questions है। एक्चुअली बच्चे यानी वर्ल्ड वॉर के कॉजेज ये ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये यूजुअली SA1 तक ही इंपॉर्टेंट होता है जब क्वेश्चन सिलेबस आपका लिमिटेड है। फाइनेंस में यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिस्क नहीं लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है। 2 mark क्वेश्चन, व्हाट आर द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 अलग पढ़ो, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अलग पढ़ो। देन अनदर 2 marks क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट 4 mark क्वेश्चन, राइट अबाउट द इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, द पीरियड दैट लास्टेड फ्रॉम 1929 to 1939। ओके, सो मेरा एक सजेशन है कि आप ये जितने भी टाइमलाइन के साथ इवेंट्स पढ़ रहे हैं इसके टाइमलाइंस बिल्कुल याद रखो और एक जगह लिख के रख लो। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग देम गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट 2 mark क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। नेक्स्ट 6 marks क्वेश्चन, explain the terms and conditions imposed on Germany in the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles में क्या terms and conditions impose किए गए थे जर्मनी पे? 3 conditions, I mean like 3 broad headings पे है। Okay, military, economic, okay, military conditions जहाँ पे इन लोगों को they were being asked to limit their आर्मी, नंबर ऑफ सोल्जर्स ये लोग कितने रखना है, सबमरीन्स नहीं रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, सब इनके ऊपर कंडीशंस इंपोज किए गए थे। उसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस भी थे इनके पास में जहाँ पे इनसे वॉर इंडिमिनिटी ली गई थी जर्मनी से, ह्यूज वॉर इंडिमिनिटी यानी अमाउंट दैट इज बीन टेकन बिकॉज यू आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। ठीक है, सो द लॉसेस दैट आर इनकर्ड बाय अ कंट्री या किंगडम। अब ओके, सो हारने वाली कंट्री से, डिफीटेड कंट्री से ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, उसको बोलते हैं वॉर इंडिमिनिटी। एंड देन टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स, ये एक और हेडिंग है जिसके अंडर आपको कंडीशंस थे कि जैसे कि जर्मनी के बहुत सारे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया था, सम वर बीइंग टेकन कंट्रोल बाय द फ्रांस, सम बाय द ब्रिटेन। ओके, इस तरह तो 3 ब्रॉड हेडिंग्स में आते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। देन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंटायर 12 to 21 में, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। सो इसको अलग अलग आप पढ़ो, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, सो दोनों सेपरेट पूछा तो भी लिख सकते हैं, आप कंबाइन पूछा तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन शेयर करूंगा। इफ यू वांट इंटरप्रिटेशन एनालिसिस लिंक्स प्लीज रीच आउट टू मी एंड फॉलोइंगली आई एम गोइंग टू डू द ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स आर एम्फसाइजिंग, दे आर बीन आफ्टर मी, दे आर चेजिंग कि भाई कोई बोलता है ये बताओ, कोई बोलता है ये बताओ। विल गो इन अ सीक्वेंस, मैं अभी आपको इमीडिएटली मैप बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इससे जाएंगे।